All right. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I hope everyone is doing well. So let's discuss what we have done so far and what is the agenda today and for this coming few classes. So far, let me join with this. So far, we have completed the entire thing in rate, redox, and reversible. Also, the challenging chapter called electrochemistry, and we have just finished with metals. So if you just count the chapters from the book, we have completed 5, but according to the Cambridge, those are 3. One is chemical reactions, which involve rate, redox, reversible. That is one chapter. And electrolysis and metals. And of course, you all know these are extensive chapters. अभी जब हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह अपने सेशन में, तो you will see कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएंगी, तो वो इजी नहीं, आई वुड से छोटे चैप्टर्स हैं, ऑफ कोर्स इजी भी है। ये कौन सी क्लास ज्वाइन कर ली मैंने? Am I in the right class now? So, आज मेरा प्लान है कि हम एयर एंड वाटर को कंप्लीट करें और कुछ देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी यस इंशाल्लाह डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल बी टेस्टेड। अच्छा, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई स्किप इंटेंशनली फ्रॉम द मेटल्स। लेट्स से एक रिएक्शन है लेकिन उसके नोट्स मैंने भेज दिए हैं, वो रिएक्शन आई विल एक्सप्लेन। अदरवाइज मेटल्स का इंटायर थिंग, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी उसमें। वन इज reactivity series, or based on the reactivity series, extraction of metals, both extraction of aluminum and extraction of iron. तो अगर आज की वर्कशीट आप देखो जो आपको मिली है for 19 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है, and that is from IGCSE, और एक ओ लेवल्स वाला मैंने क्वेश्चन कट किया था। नो मैटर, एज मैंने कहा IG या ओ लेवल्स है, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो तो सिलेबस तो सेम है ना। सो आपने वो दोनों क्वेश्चंस आई होप अटेम्प्ट किए, अगर नहीं किए तो क्लास के बाद उसको प्लीज करें। और वो डे वाइज वर्कशीट है, समटाइम वो आगे पीछे हो जाती हैं ड्यू टू टाइम, यू नो बहुत सारी क्लासेस के लिए बनानी होती हैं, तो कुछ 1-2 दिन स्किप हो जाते हैं बीच में, बट यू विल गेट टिल इंशाल्लाह डे 60 ऑल द वर्कशीट्स। 60 डेज तक इंशाल्लाह आपको ये मिलेंगी, और उसमें यू वुड सी जो बच्चे इसको कंसिस्टेंटली सॉल्व कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो आपको ग्रेजुअली उसमें आप अपने आप में इंप्रूवमेंट फील करोगे in terms of understanding the question and stuff. So let's get started with air and water. पहले एयर करेंगे, फिर वाटर वाला टॉपिक कर लेते हैं, और इसको हम आज ही कंप्लीट करेंगे। मेरा प्लान है आज ही इसको कंप्लीट करना, ठीक है? कोई मसला तो नहीं? नो सर। एयर एंड वाटर पहले हम करने वाले हैं एयर, और फिर उसके बाद करेंगे वाटर। अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा ये मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, सो आई होप आप सबकी मेमोरी अच्छी है। नहीं है तो आज हो जाएगी इंशाल्लाह, आप याद करेंगे मेरे साथ इसको, ठीक है? Downloading the cover resources from the network, and finally it is downloaded, and we are using the most recent, the most advanced notes. बहुत सारे features हैं इसमें, मजे मजे के। Okay, so the first thing is about air. Ready everyone? Am I audible? Am I perfectly audible? Yes. Ayan Habib, I hope you can hear us. Muhammad Abdullah, Noor, and everyone. Okay, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's define the air. Air is mixture. Is it mixture of solids or liquids? Air is mixture of gases. Solids का mix, तो gases का mixture है। Air is a perfect example of mixture. Mixture of gases. लेकिन कौन सी gases हैं भाई air में? What gases are present in air? So if you look at the composition, so air contains nitrogen and oxygen and argon and water vapors and CO2. So nitrogen is present up to 78%. 21% क्या हो गया? Oxygen.
तो together these two gases makes 99% of our air. I'm talking about clean dry air. लाहौर की एयर की बात नहीं कर रहा मैं. Those who are in Lahore they know कि लाहौर में तो 10-20% तो स्मॉग है, फिर गाड़ियों की स्मोक है, फिर कहीं जाके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बारी है. So that, I mean, in remaining 1% it is argon, water vapors and CO2. और उस 1% में जो सबसे ज्यादा abundant है, that is argon. And argon is the same noble gas that is most abundant among all noble gases. तो आपको पता होना, पूछ सकता है, name the gas, noble gas that is most abundant. So what is that gas? कौन सी गैस है भाई वो? Argon. Argon. Right? We know that in air we have lot of pollutants. Air में बहुत सारे pollutants हैं, और उन pollutants के बहुत सारे sources हैं, और उन sources की बहुत सारी effects हैं. So let's straight away learn the pollutant. Pollutants होते क्या हैं? The contaminations, the dust particles, that contaminate the quality of air. जो air की quality को contaminate करते हैं, degrade करते हैं, air को poor बनाते हैं, उनको हम कहते हैं pollutants. So pollutants, we have variety of pollutants, right? So pollutants हमारे पास start होते हैं, हाँ, अच्छा, यहां मैं pollutants की list बनाऊंगा. यहां हम उसका source लिखेंगे और यहां हम उसका इफेक्ट लिखेंगे. रेडी? सो सबसे पहला पोल्यूटेंट क्या है? सबसे पहला पोल्यूटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड. इसका सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है इसका कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या आप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहते हैं. हाइड्रोकार्बन्स के अलावा भी तो हो सकती है ना. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग, जिनमें कार्बन होगा भाई उसी को बर्न करेंगे ना, तो हाइड्रोकार्बन्स निकलेंगे. इसका इफेक्ट क्या है? सोचने जरा इसका इफेक्ट. फिर दूसरा पोल्यूटेंट है मीथेन. आई गो विद मीथेन. अच्छा, मीथेन का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मीथेन? मीथेन कहां से आती है? मीथेन आती है टू सोर्सेस से. वन इज वेस्ट गैस फ्रॉम डाइजेशन इन एनिमल्स. फ्रॉम डाइजेशन, और डाइजेशन प्रोसेस में जो गैसेस रिलीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसमें मोस्टली मीथेन गैस होती है. डाइजेशन इन एनिमल्स. और दूसरा बेटा ये आती है डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेशन से. जो हम सब्जियां, गली सड़ी सब्जियां फेंक देते हैं बाहर, वो डीकंपोज होती हैं, बैक्टीरिया डीकंपोज करते हैं उसको. तो डीकंपोजिशन में जो गैसेस रिलीज होती हैं उसमें एक गैस मीथेन गैस भी है. अच्छा, ये जो दो गैसेस मैंने पहले लिखी हैं, इंटेंशनली मैंने इनको साथ साथ रखा है. द रीजन इज बोथ ऑफ दीज गैसेस आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट दैट दे कॉज टू द एनवायरनमेंट. तो क्या इफेक्ट कॉज करती हैं ये? Global warming. Excellent. They both are greenhouse gases. Greenhouse gases. और ये क्या करती हैं? They causes global warming. Global warming क्या कह लो, climate change कह लो, हाई ज्यादा गर्मी कह लो. अच्छा, मैं कुछ दिन पहले ना एक छोटे से बच्चे की बुक पढ़ रहा था. अच्छा, मैं रियलाइज कि जब आप छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ते हो ना, दोज हु आर इन ग्रेड 4 और 5, आई डोंट नो आपने एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया. आपने मेरे कहने पे एक्सपेरिमेंट करना है. छोटे बच्चों की बुक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, आपको वो चीजें सारी मिलेंगी. मुझे तो बड़ी नई मजे की चीजें मिलती हैं छोटे बच्चों की बुक से. तो मैं एक छोटे बच्चे की बुक पढ़ रहा था, ग्रेड 6 का बच्चा था. उसमें ग्लोबल वार्मिंग का उसने लिखा हुआ था और बड़ी मजे की एग्जाम्पल थी. देखो, बच्चे की बुक्स पढ़ने से मुझे बड़ी मजे की एग्जाम, और मैं फर्स्ट टाइम कोट कर रहा हूँ. वो ग्लोबल वार्मिंग को इस तरह डिस्क्राइब कर रहा था, ग्रीन हाउस को बेसिकली. कहता है इमेजिन आप अपनी गाड़ी को धूप में खड़ा कर दें और उसके बिल्कुल शीशे जो है वो एयर टाइट कर देंगे, मिरर्स एयर टाइट, एंड यू विल सी कि बाहर इतनी गर्मी नहीं होगी गाड़ी के अंदर. आफ्टर 5 मिनट्स बॉइलिंग गर्मी होगी इनसाइड द कार.
बिकॉज द ग्लास एक्ट एज अ ग्रीन हाउस. वो जो ग्लास होगा उसके रिफ्लेक्शन से जो अंदर हीट जाएगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू जो हीट बाहर है. सो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं दे एक्ट एज अ कार प्लेस्ड अंडर सन. तो जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी इस प्लेनेट में उतनी ही ज्यादा गर्मी होगी. दैट्स व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ. आई मीन यू सी द समर लास्ट ईयर इन लाहौर. लास्ट सीजन जो था समर में, आई रिमेंबर ऑलमोस्ट 50 डिग्री था. इतना इससे पहले कभी भी नहीं होता था. जब मैं ग्रेड 8-10 में होता था तो आई रिमेंबर जितना सीजन समर का था उतना ही विंटर का ऑलमोस्ट होता था. अब तो आप देखें विंटर नॉट मोर देन 10-20 डेज, 20 डेज चलो कह लो, 20 डेज के बाद नॉर्मल वेदर होता है. और समर सीजन तो आई मीन इन लाहौर इट इज लाइक ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स तक चलता है. और ऑफ कोर्स सऊदी अरब में तो लोग देखते हैं विंटर समर है अभी, लेकिन अभी तो मौसम ठीक था जब मैं गया. सो CO2 एंड मीथेन. CO2 आती है कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से, और सोर्सेस भी पूछता है वो. और मीथेन आती है वेस्ट गैसेस फ्रॉम एनिमल्स, ऑल्सो decomposition of vegetation, and both causes global warming and climate change. अच्छा, जो थर्ड गैस है that is carbon monoxide. अगर आप यूं लिखेंगे या यूं लिखेंगे इसमें कोई फर्क है? I mean, are they both same or different? There is a definite difference. अगर आप C कैपिटल लिखोगे, O स्मॉल लिखोगे, तो भाई ये कोबाल्ट है, ये नहीं लिखना. C और O सेम साइज के लिखने, which represent oxygen and carbon as an element. So make sure कि जिस साइज का C लिख रहे हैं उसी साइज का O लिख रहे हैं. That represents carbon monoxide. ये आती कहां से? ये आती है इनकम्प्लीट कंबशन से. इनकम्प्लीट कंबशन. कार्बन डाई और कार्बन मोनो का एक ही सोर्स है, बट कार्बन डाई बनती है बाय द कंप्लीट कंबशन, और ये आती है फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. और ये करती क्या है? ये बहुत डेंजरस गैस है, ये पॉइजनस गैस है भाई. ये सेम गैस है जो आपके हीटर से रिलीज होती है. ये टॉक्सिक गैस है. इसलिए जब आप गाड़ी में हीटर ऑन करते हैं तो कभी भी आप उसके जो मिरर्स हैं उसको, आई मीन वो जो शीशा होता है क्या कहते हैं उसको बिल्कुल एयर टाइट नहीं करेंगे आप. यू ऑलवेज अलाउ सम वेंटिलेशन, क्योंकि उस हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने रियलाइज किया होगा जैसे आप हीटर ऑन करते हैं ना आपको हल्की सी नींद आना शुरू हो जाती है. आई डोंट नो आपने रियलाइज किया या नहीं, मेरे साथ तो यही होता है. आप हीटर ऑन करें तो थोड़ी डेजीनेस लेजीनेस फील होती है, बिकॉज उसमें से कार्बन मोनो निकल रही होती है जिससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, हम लेजी फील करेंगे, और इवेंचुअली आई डोंट नो आप लोगों को इंसिडेंट याद है या जो नहीं, जो मरी में हुआ था सम 4-5 years बैक. देयर वाज स्नोफॉल, इंटेंस स्नोफॉल थी, लोगों की गाड़ियां स्टक हो गई, रोड ब्लॉक हो गया. तो कुछ फैमिलीज थी जिन्होंने ऐसे ही हीटर ऑन किया और बाहर बहुत ठंड थी और वो बेचारी पूरी फैमिलीज की डेथ हो गई थी. आई थिंक 18-19 लोगों की डेथ हुई थी उस इंसिडेंट में, बिकॉज बाहर स्नोफॉल था, अंदर उन लोगों ने हीटर ऑन किए हुए थे और एयर टाइट किया हुआ था. अच्छा, उसके बाद बेटा वी हैव अदर पोल्यूटेंट्स व्हिच इंक्लूड्स oxides of nitrogen and sulfur. So सबसे पहले हम लिखते हैं oxides of nitrogen. Like when I say oxide of nitrogen, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है. इसका सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके दो सोर्सेज हैं. एक है मैन मेड सोर्स, सिंथेटिक सोर्स, एंड दैट इज स्पार्क इन द कार इंजन. स्पार्क इन कार इंजन. जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन कितनी है इस रूम में, कितने % नाइट्रोजन है? 78%. तो हर जगह ही है ना 78% का मतलब. तो जैसे ही आप, वो इंजन में भी है क्योंकि जहां कुछ नहीं है वहां ऑक्सीजन, आई मीन गैसेस हैं. जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हैं बहुत हाई एनर्जी होती है, उससे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं. सो स्पार्क इन द कार इंजन इज द सिंथेटिक सोर्स. और नेचुरल सोर्स इसका क्या है? लाइटनिंग. जब बिजली चमकती है, तो शायद मैंने आपको बताया था, जब बिजली चमकती है, बारिश होती है, तो कितना टेम्परेचर होता होगा? एनी गैस? आई मीन इतना हाई टेम्परेचर होता है ना, इतनी रात में भी बिजली चमके तो 1 नैनो सेकंड पूरी लाइट हो जाती है. एंड नॉट जस्ट एट वन स्पॉट, पूरे सिटी में या पूरे उस जगह पे जहां बारिश हो रही होती है. तो लाइटनिंग में कितना टेम्परेचर होता होगा? इमेजिन अयान, मायरा. 3000. It is above 3000, 4000 above. Equal to the surface of the sun. Yes. So you imagine कि उस high temperature पे naturally nitrogen is considered as inert gas.
nitrogen does not react no matter what, but under these two conditions. And under these two conditions, it produces oxide, which is called oxide of nitrogen. And जो nitrogen के oxides हैं, what do they cause? So many problems. They cause nitrogen is a non-metal. So non-metal oxides are acidic. तो ये भी क्या करेगी? Acid rain cause करेगी. Also, ये breathing difficulties, respiratory issues, respiratory difficulties, just a second. And it also led to the formation of photochemical smog. तो जो smog होती है उसमें भी इसका काफी important role है. I'm talking about oxides of nitrogen. फिर आते हैं oxides of sulfur. Oxides of sulfur. But oxides of sulfur, let's say SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है. ये कहां से आते हैं? Anyone? Oxide of sulfur का क्या source है? Oxides of sulfur are produced from the fuel. वो वाला fuel जिसके अंदर sulfur है. So combustion of the sulfur containing fuel. Combustion of sulfur containing fuel. और ये क्या cause करती है? Again, acidic gas है तो acid rain. Done? Right? Yes, sir. इसी तरह बेटे एयर के अंदर particulates होते हैं, solid dust particles होते हैं, particulates कहते हैं उनको. वो respiratory problem करते हैं. They are cancer, carcinogenic होते हैं, cancer causing. तो solid dust particles जिनको particulates कहते हैं, they causes, some major problems. So this is how we can describe the pollutants, their sources, and their effects that they cause to the environment. Done? Yes, So sir. two gases that causes acid rain. वो कौन सी दो gases हैं? What are two gases causes acid rain? Nitrogen oxide and sulfur oxide. Excellent. What two gases causes global warming? Methane and carbon dioxide. आपको पता होना चाहिए. देखो, methane and carbon dioxide causes global warming. वो आपसे sources भी पूछेगा. Source of methane, decomposition of vegetation. Waste gases from animals. Source of carbon dioxide, you can see nitrogen ka source is spark in the car engine and lightning, and you see the source of oxides of sulfur, combustion of the sulfur containing fuel. Make sense, everyone? Yes? Yes, sir. Okay. तो ये notes आपको मिल जाएंगे. Of course, मैंने पहले भी कहा है, लिखना is important, but not that. सुनना with focus is more important. Okay. I want everyone to have a good sound understanding of how the greenhouse act. तो greenhouse मैं explain कर देता हूं, but greenhouse का आपको पता होना चाहिए. Greenhouse में होता ये है कि imagine if this is the surface of the earth. So हमारे पास है ये सारी मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अच्छा, नेचुरली क्या होता है कि ये सन है. सन की जो रेडिएशंस हैं, they hit the surface of the earth and they reflect back, right? Radiations आ रही हैं, वो surface को hit कर रही हैं and they reflect back. Radiations आ रही हैं, they hit the surface and they reflect back. Naturally ये होता है कि जो sun की radiations हैं, they hit the surface of the earth and they reflect back. But imagine you have these gas molecules, carbon dioxide and methane, they are like acting as a policeman, So ये क्या करती हैं? Sun radiations यहाँ पे आएंगी, but those sun radiations, since we have these gases over there, तो ये radiations इनको trap कर लेंगी, इनको absorb कर लेंगी. So basically, जितनी ज्यादा ये gas molecules होंगे, उतना ज्यादा sun radiations आएंगी तो अपनी मर्जी से लेकिन जा नहीं सकेंगी. So क्योंकि ये sun radiation को absorb करेंगी, तो जो loss of heat होगा to the space, ये वाला loss of heat to the space वो कम होगा, और वो heat सारी की सारी कहां होगी? On the planet. That is why we are facing global warming, इतना severe effect जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, because of the excessive use of fossil fuels as in vehicles, which causes emission, of course, of carbon dioxide gases, methane gas निकल रही है, CO2 बहुत high amount में है. तो क्योंकि ये gases बहुत high concentration में planet पे हैं, तो sun radiations आती हैं, but they are, वो वापस जाना उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि these gases absorb. अब ये gases इनको absorb करती हैं. अब जब gases ज्यादा heat absorb करेंगी तो of course वो release करेंगी, तो हमें
we feel of course high temperature. But you know, अगर हम इन गैसेस को बिल्कुल रिमूव कर दें, imagine if there is no CO2 and there is no methane gas, what would happen to the planet temperature? Anyone in the class? What would happen to the planet temperature? Imagine if there is no CO2 and no methane. It will decrease. अच्छा, आप सोचो कि दिन के टाइम these radiations, sun radiations आ रही हैं, they hit the planet surface of course, and days के टाइम ये जो gases हैं they absorb the sun radiation. तो sun radiation को absorb करती हैं, तो जो डायरेक्ट एक्सपोजर है सन रेडिएशन का वो अर्थ उससे बच जाती है. सो अगर ये रेडिएशन, अगर ये गैसेस नहीं होंगी तो वो जो सन रेडिएशन है वो डायरेक्ट हिट करेंगी टू द अर्थ सरफेस. सो डेज विल बी टू हॉट टू सर्वाइव. 50 डिग्री तो बहुत कोल्ड होगा फिर, क्योंकि दिन के टाइम ये गैसेस हमें सेव करती हैं प्लेनेट इन टॉक्सिक या हाई रेडिएशन गैसेस से, हाई टेम्परेचर गैसेस से, इन रेडिएशन से. और इमेजिन इफ देयर इज नो गैस, देयर इज नो गैसेस, नाइट्स वुड बी टू कोल्ड टू सर्वाइव. क्योंकि नाइट में तो कोई सन नहीं होता ना, तो टेम्परेचर इतना लो होगा, इट विल बी वेरी हार्ड टू सर्वाइव. So these gases are very essential for our survival as well. A very limited quantity, I mean a decent optimum amount of these gases. So they control the day temperature by absorbing the sun heat, and they control the night temperature by releasing the same amount of heat. And that's why we are sitting at night, there is no sun out there, but still the temperature is not very low. It is because the same gases releasing the heat they absorb during the day. So the presence of these gases is very essential for our survival. But the problem is, ये gases बहुत ज्यादा amount में हो रही हैं, जिस वजह से problem हो रहा है. I hope आपको game समझ आ गई सारी. Do you know we can decrease the global warming? Decrease global warming. वो क्या नाम है उसका? वो जो स्वीडन की एक लड़की है, रीथा और समथिंग. किसी को पता है उसका? वो जो लाइक एनवायरनमेंट के लिए वो वॉक भी करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज इन न्यूज. आई थिंक डेनमार्क की है वो. किसी को पता है उसका? रीथा नाम है उसका. क्या नाम है उसका शामीन? रीथा और समथिंग. नहीं पता किसी को? चले. सो ग्लोबल वार्मिंग को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज? आई मीन यू कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांटेशन करके. और क्या कर सकते हैं हम? Less cars. Plantation के अलावा there are so many different methods, alternatives through which you can decrease the global, I mean these greenhouse gases. Decrease वो जो animals ये वाली gases release करते हैं, उनको कम कर सकते हैं, which is practically not possible. Decrease the livestock farming. वो जो farming करते हैं, हम farming नहीं करेंगे तो इतने करोड़ों लोगों के लिए हम मीट और बीफ और चिकन कहां से प्रोड्यूस करेंगे? सो डिक्रीज द लाइवस्टॉक फार्मिंग. दिस इज आइडियल बट नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. और क्या कर सकते हैं हम लोग? बेटा जो हम गाड़ियां हैं वो BYD की बाय कर सकते हैं, बिकॉज बाकी गाड़ियों में तो फ्यूल यूज होता है. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सर हम गरीब हैं. ये बात तो ठीक है, लेकिन BYD अभी लाहौर में आई है कुछ टाइम पहले, 5-6 मंथ्स पहले, तो आई थिंक इट्स चीपर देन पेट्रोल की गाड़ियां. पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है. तो मैं अभी कल ही सोच रहा था कि अब देखना कुछ टाइम तक पेट्रोल की गाड़ियां पाकिस्तान में काफी ट्रेंड कम हो जाएगा. BYD इज चीपर, आई मीन टेस्ला महंगी है वो. लेकिन आई बीन टू चाइना, मैंने ट्रैवल किया हुआ BYD टैक्सीज पे और इस तरह. तो भाई क्या एक कमाल लेवल है उसका. अगर आपके पास भी चांस मिले, अगर आपके मामा या बाबा आपसे पूछें कि बेटा कौन सी गाड़ी लेनी है, तो बोले मामा BYD. कोई भी ले ले, बड़ी मजे की कार है, बहुत मजे की राइड आती है उसमें. अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? I mean, we can go with renewable energy sources. Normally हम जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, हम पेट्रोल से बिजली प्रोड्यूस करते हैं. पता है आपको? पेट्रोल को बर्न करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. हम हैं गरीब, लेकिन काम हमारे अमीरों वाले. सो वी कैन शिफ्ट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम टू विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी. पाकिस्तान में तो सोलर एनर्जी. विंड एनर्जी, दोज हु बीन टू स्विट्जरलैंड और टू यूरोप और टू चाइना, दे नो हाउ डू दे. वो विंड टरबाइन नहीं होते, हवा की वजह से वो टरबाइन रोटेट करते हैं और उनकी रोटेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. फॉसिल फ्यूल के यूज को कम कर सकते हैं. ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल
डिक्रीज द फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल के यूज को कम कर सकते हैं, और भी कुछ है, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें दो इक्वेशंस हैं जो हमारे सिलेबस में एक्सपेक्ट एक इस बार आने वाली है। एक तो है बेटा जो कैटालिटिक कन्वर्टर, हाँ गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर यूज कर सकते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर वो क्या करता है? कैटालिटिक कन्वर्टर हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में चेंज करता है, टॉक्सिक गैसेस को। सो गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम द कार एग्जॉस्ट। सो कैटालिटिक कन्वर्टर अगर हमने गाड़ी के एग्जॉस्ट में फिट किया हुआ, विच इज मेड अप ऑफ पैलेडियम और रोडियम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। इसको बैलेंस करना है, कैसे करूंगा? शाबाश, हाउ डू वी बैलेंस दिस इक्वेशन? सर 2CO। देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, देखो इधर कितने कार्बन है सर? 1, इधर भी 1 है। इधर कितने ऑक्सीजन है? लेफ्ट साइड पे 2, इधर भी 2 है। प्रॉब्लम नाइट्रोजन का सिर्फ। इधर कितने नाइट्रोजन है? 1 लेफ्ट साइड पे कितने नाइट्रोजन है भाई? 1। राइट साइड पे कितने नाइट्रोजन है? 2। तो इसको 1 करने के लिए इसके साथ 1/2 लगा दे, बैलेंस हो गई। बट इफ यू डोंट वांट 1/2, कहेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने? सो इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस 2, तो क्या करेंगे फिर? मायरा को पता है, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद 2। यहां भी 2 लिख दो, यहां भी 2 लिख दो, यहां भी 2 लिख दो, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ कुछ भी ना लिखो। ये बैलेंस होगी। जरा गौर से देख लें सब लोग, चेक कर लो, ये बैलेंस है, परफेक्ट बैलेंस है। सर कैन यू टेल अगेन? ओके श्योर। देखो मैंने कहा कि इसमें सारी चीजें बैलेंस है नेचुरल इक्वेशन में, एक्सेप्ट द नाइट्रोजन्स। इस साइड पे है 1 नाइट्रोजन अब्दुल्ला, और इस साइड पे 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, राइट? सो हमें या तो लेफ्ट वाले को 2 बनाना है या राइट वाले को हमने 1 करना है। तो क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन N2 है, 2 का हाफ क्या होता है? 2 का हाफ क्या है? 1। 1/2। तो मैंने नाइट्रोजन के साथ 1/2 लिख दिया, हाफ नाइट्रोजन मतलब 1 नाइट्रोजन। दिस इज 100% एक्सेप्टेबल। तो देखो बेसिकली ये 2:2 से कैंसिल होएगा ना, जो कि आपने करना नहीं लेकिन हो जाएगा ना। तो देखो एक ही नाइट्रोजन बचेगी ना, तो इसलिए आप उसके साथ 1/2 लिख देंगे। लेकिन अगर आपको ये 1/2 लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, आप कहते हैं सर ये क्या बात है, आपने इस 2 से जान छुड़वानी, तो क्या करेंगे? आप सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, और N2 बच जाएगा। ये लो, बैलेंस हो गई। ठीक है, डन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। कार्बन मोनोऑक्साइड, अ टॉक्सिक गैस, चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। आज मेरा प्लान था वाटर भी करवा दूं, लेकिन पता नहीं, मैं आज ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई है, थोड़ा सा स्लो हो गया। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो इट इज ओवरऑल अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनिशियली कार्बन मोनो टॉक्सिक थी, वो कार्बन डाई में चलेगी, वो तो टॉक्सिक नहीं है। नाइट्रोजन मोनो क्या है? ये तो एसिडिक गैस है, लेकिन नाइट्रोजन तो एसिडिक नहीं है ना। सो सी फ्रॉम कैटालिटिक कन्वर्टर यू आर कन्वर्टिंग अ टॉक्सिक हार्मफुल गैसेस टू समथिंग गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ओके, लास्ट है फोटोसिंथेसिस। तो हमारा जो एयर है वो कंप्लीट हो गया, कल इंशाल्लाह हम वाटर करेंगे। ऑल्दो इसमें हमें 2 लेसन्स नहीं लगाने चाहिए थे, बट लग जाएंगे। चलो कल हम वाटर करके इसके पास पेपर्स कर रहे हो। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की वर्ड इक्वेशन क्या है? क्या यूज होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मायरा कैसे कहते हैं वाटर इन ब्रिटिश एक्सेंट? वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूसेस ग्लूकोज प्लस क्या? ऑक्सीजन। हमने बेटे ऐसे ही, ये गोरों ने हमें खुद वाटर कहने पे लगा दिया, हम टी कहते हैं, वो टी कहते ही नहीं। अजीब। वाटर हमारा तो पानी है, वाटर तो उनका है। इसकी कंडीशंस क्या है भाई? अच्छा, कार्बन डाई है CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस O2। बैलेंस करना है, सबके साथ सबके आगे 6 लगा देने। सबके साथ 6 लगा दो, यही किया सबने। अच्छा, इसकी कंडीशंस क्या है? यूवी लाइट है, और क्या है? और क्या कंडीशन है? कुछ जल्दी बताओ, 10 रुपए दूंगा।
प्राइस अनाउंस कर दिया मैंने, प्राइस अनाउंस करके मैंने लिख Chlorophyll. दिया। Chlorophyll. Chlorophyll. Light. Yes, UV light, of course, sunlight, and the presence of chlorophyll is essential for the photosynthesis. So you plant more trees will eat more carbon dioxide. So if plants will eat carbon dioxide, there'll be less global warming, right? So I mentioned both the word and symbol equation, and with this, the whole thing in air is completed. Done? So I hope all are ready for a good quiz coming probably this week, Saturday, from whatever we have done so far. Okay? Yes, sir. Okay. So we need to start with water. Water का formula क्या है? What is the formula of water? H2O. H2O. Is it liquid, solid, or gas? क्या question पूछ रहा हूँ यार? Liquid. So what is the formula of ice then? Ice that we freeze inside the freezer. Sir, same है. Yes, Amna ma'am, Ayan, Abdullah, Noor. The ice that we put water in the freezer and we get ice. So uska formula kya ice tha? I think it's the same. It's the same. We just decrease the temperature, we make it solid, but the composition remains unchanged. Even if you heat the water, you get steam. Steam is still H2O, but it is gas. So I hope you all understand that no matter if it is ice, steam, or water, the chemical composition remains unchanged. Make sense, everyone? Okay. Yes, sir. So water is, water आपने देखा है कभी? It is transparent. It is colorless. It is odorless. It contains hydrogen and oxygen, of course. So it is used. कहाँ use होता है water? अब्दुल्ला फैसल, कहाँ यूज होता है वाटर? अब्दुल्ला भाई बता दें। अब्दुल्ला सो रहा है। सर आप अपनी ईमानदारी से बता दें जो आपका दिल करता है। तो वाटर इज यूज्ड इन एज अ सॉल्वेंट, डोमेस्टिक यूजेस हैं, इसके इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, पेंट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। या दिखा भी रहा हूँ फिर भी नहीं तुम लोग बता रहे मुझे। ड्रिंकिंग के लिए वाटर यूज करते हैं। ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड से आता है स्पेशल मेरा, वो स्विट्जरलैंड के नहीं, एक वहां पे एक है वो इम्पोर्टेड वाटर, आई एम रिच सो आई ड्रिंक इम्पोर्टेड वाटर। वही पिछले दिनों मैं एक देख रहा था, कोई मेरे जैसा बेचारा ना उधर चला गया किसी मार्ट के अंदर, ऐसे वाटर बॉटल पड़ी हुई थी, उसने उसको लगा शायद नेस्ले वाली 50 रुपीज की है, उसने उठाई खोल के पी ली। वो काउंटर पे करने गया तो उसने 2000 रुपया मांग लिया। कहता भाई क्या हो गया, मैंने तो पानी पिया, 2000 रुपया किस चीज का? वो था इम्पोर्टेड वाटर। तो उसके साथ प्रैंक हो गया बेचारे के। वो था वो जो आता नहीं है स्विट्जरलैंड से कोई इम्पोर्टेड, उसके लेक का पानी होता है स्पेशल, कोई फ्रेश वाटर। वो बेचारे ने, पूरी फैमिली ने पिज्जा खाना था 2000 का, वो पानी पी के घर आ गए, उनका बजट खराब हो गया। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप किसी भी महंगी जगह पे शॉपिंग करने जाएं, पहले रेट लिस्ट चेक कर लिया करें। ओके, सो वाटर के सिर्फ हम केमिकल टेस्ट करेंगे आज। केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर, केमिकल टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वाटर। चेक द प्रेजेंस। देखो 2 टेस्ट हैं और इनमें से एक कंफर्म पेपर में आना है। देखो देयर इज नॉट ओनली वाटर दैट इज ट्रांसपेरेंट और odorless. I mean, odorless का मतलब होता है smellless. There are so many liquids out there which are as transparent as water and they have no smell like water. So how to confirm whether the liquid is water or not? So we use, there are 2 लोग हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, anhydrous, copper 2 sulfate, F से होता है शायद। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4. दिस इज एनहाइड्रस, सॉलिड है ये और ये व्हाइट है, ठीक है। अब अगर आपके पास लिक्विड है और आपको लगता है वाटर है, और आप इस व्हाइट पाउडर के ऊपर, जो सॉलिड व्हाइट पाउडर है, इसके ऊपर वो लिक्विड के कुछ ड्रॉप डालोगे, इफ इट इज वाटर तो इसका कलर व्हाइट से क्या हो जाएगा? ब्लू। शाबाश। तो अगर वो कॉपर सल्फेट व्हाइट से ब्लू होगा तो वो जो लिक्विड वाटर आपने चीज ऐड की वो वाटर है। और ब्लू वाले का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट डॉट 5H2O। और ये रिवर्सिबल है, इसको हीट करोगे तो वो फिर से व्हाइट हो जाएगा क्योंकि वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। सो द फर्स्ट कंपाउंड यू कैन यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस, आई नेवर सेड द प्योरिटी, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज यूज ऑफ एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस है
और ये हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है which contain water of crystallization. This is hydrated copper 2 sulfate, right? But secondly, we can use, we can use cobalt 2 chloride. Now cobalt 2 chloride, इसका फॉर्मूला है COCl2. ये इनिशियली ब्लू है, पहले से ब्लू है, और इसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करें, इसके साथ 6 आते हैं, तो ये ब्लू से क्या हो जाएगा? Pink. पिंक. अगर ये पिंक होगा तो वो जो लिक्विड ऐड किया था वो वाटर है, अगर ये पिंक नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो वाटर नहीं है. दिस चेंज इज आल्सो रिवर्सिबल. हीट करोगे तो ये वापस ब्लू हो जाएगा. सो यू कैन यूज बोथ कोबाल्ट एंड कॉपर सल्फेट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर. इफ इट टर्न्स व्हाइट टू ब्लू, आई मीन कॉपर, तो वो पानी है, प्योर है या नहीं है इसकी बात नहीं हो रही. और अगर वो ब्लू से पिंक होता है कोबाल्ट, तो वो पानी है. प्योरिटी कैसे टेस्ट करते हैं? जस्ट वन लास्ट थिंग, टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ वाटर कैसे चेक कर सकते हैं? Boil at 100 degrees Celsius. तो बेटा प्योरिटी के लिए सिंपल है, आप किसी भी चीज की प्योरिटी चेक करनी है एक्सीडेंट, आप उसको बॉयल करो. जो प्योर वाटर होगा वो अपने एग्जैक्ट 100 बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. जो इम्प्योर पानी होगा, जो पानी हम पीते हैं, दिस इज नॉट प्योर. यू नो व्हाट वाटर इज दिस बाय द वे? ये कौन सा पानी है? इसको हम क्या कहते हैं जो पानी हम पीते हैं? पता नहीं. अस्तगफिरुल्लाह. अब्दुल हादी, क्या कहते हैं इस पानी को? जब हम एयरपोर्ट शॉप पे जाएं तो उसके बाद क्या कहते हैं? भाई पानी देना, कौन सा पानी देना, कौन सी बॉटल देना? Mineral water. Mineral water. Mineral water. It contains lot of salts, metallines, minerals. So this is not pure. 100% impure है ये. As a chemist, but of course पीने के लिए तो ये प्योर ही है ना. हमारे लिए प्योर है because it contain minerals. We need minerals. We cannot drink pure water. Pure water will be unfit for our stomach. Disorderness हो जाएगी. So impure water जो होगा, impurities होती हैं बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देती हैं? हाई. जितना ज्यादा impurities होंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही 100 से ऊपर जाएगा. Done? This Yes, is true sir. for any liquid. So we drink mineral water, not pure water. Pure water पियोगे तो फिर बेटा आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी पेट वाली.